faces again. बहुत दिनों के बाद दिख रहे, तो सब अलग अलग दिख रहे. I have seen Nisha also with some, I don't know, cute sa hairstyle and I don't know what, but there are people after a long time I can see such a good faces. Happy to see you guys. I hope मेरे साथ भी ये हो रहा है. नहीं तो पता चला क्यों पका रही है, ऐसा ना हो जाए. Okay. नहीं मैम, यहाँ पे भी सेम. Oh, thank you so much. Okay. As everybody know, इसके पहले बहुत सारे इंट्रोडक्शन हो चुके हैं, so we'll just straight drop into the point. आज का जो टॉपिक है that is upcycling. So I'll just introduce the sir who is going to take the workshop today. His name is Harshal Mistry. I'll just introduce him first and then I'll just hand it over to him then. He has basically completed his bachelor's in interiors from INFD itself, our own institute itself, having 4 years of experience as freelance interior designer. He has 2 years of experience in teaching as interior faculty. Also has worked as a graphic designer for an educational unit in Auroville. Then currently also he's working with the unit which is into upcycling. It's an upcycle studio in Auroville, and faculty of interiors. He's basically renowned into some, I mean, he's into some renowned interior college he's working as. Apart from his teaching, he conducts various creative workshops. I guess most of you know him. You must have seen him in a workshop probably. अगर आपको याद है, हमने glass cutting का workshop किया था. There also he was there. So the workshops which are related to interiors pan India. Harshal sir, I would request you to talk about bit and then hand it over to you, sir. Yeah, thank you so much, Nikita ma'am, for this amazing introduction. And before starting this workshop, I would like to thank Riya ma'am, especially for giving me this opportunity. She is really an inspiration for all of us in such young age. What she has achieved is really amazing. So thanks to all the faculties and Riya ma'am for giving me this opportunity. And मुझे बहुत अलग लग रहा है यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर देने के लिए, क्योंकि यूजुअली जब मैं क्लास में लेक्चर देता हूँ तो स्टूडेंट्स का आवाज होता है, उनके क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे सब कुछ साइलेंट है और एक सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन है सामने. तो मैं अपना सेशन पहले ही अपसाइक्लिंग, सबको ऐसा लगता होगा कि बहुत बोरिंग है, तो मैं इसे बोरिंग नहीं बनाना चाहता. मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें. So if you don't mind, I would like to know from students what they know about upcycling, what they have an idea about upcycling at the first, so that I just confirm that I'm not talking to the blank screen. So I would like students to first tell about upcycling, what they have an idea about upcycling. Come on, guys, speak up. So who's starting? Guys, if you are not if you're not able to speak up, then more of you can just write it in the chat box also. That Yeah. would also be clear, because there are a lot of people at the time. Maybe it would be confusing if more of the students are talking at the same time. So you can Right. also answer in the chat box. Okay, there's someone who has answered revamping furniture. Janvi Nagpure, she has answered revamping furniture. I won't be starting this workshop if I don't get even 10. Reusing the Student. old reusing the old things like furniture. Yeah, Or yeah, sir. When we have some waste materials, we can reuse to make something new from that. That Right. is might be upcycling, because it's like the waste material which has been thrown up or which cannot be used can be upcycled with something new designed or in something new manner.
Can you give some example of it? So, for example, if we have some tires which have been waste, or the cycle, the main frame of the cycle, or some plastic seat which doesn't had the down portion, you can create something into chair. You can create, if you have a box that जो पुराने जमाने में होते थे सर, बड़े बड़े जो carry करते थे, you can create some sofa from that. Basically you can put some cushioning and you can create the back as that, so you can Right. put some legs, so we can upcycle that box into something, or you can even create a dining or a normal good table. Perfect. Yeah, that's really right. What's your name? So Shubhadeep. Shubhadeep. That's great. Thanks for giving this answer. Yes. So I'm still waiting for other students to answer. Best from waste. Okay, reuse in a way to create product of higher quality. That's perfectly right. Others, I can see 61 participants and just few are replying. So I'm waiting for the words. Reusing things in such a way to create a product of higher quality. Oh, yeah, that's right. Okay, that's it. I think people are shy over here a little bit, and that's perfectly fine. So we'll start with the workshop. Um, so if you have any questions regarding upcycling or any doubts, we would have plenty amount of time, and I'm sure you are going to have plenty questions regarding upcycling, because I've made the presentation very short so that you can understand it in a simple way. And since you have came here for interior background, so you need to have knowledge about materials. So we will be talking about materials and the future of upcycling and things about that. So I'll quickly start the presentation. If you have any doubts regarding the presentation, you can chat in the comments, or you can ask, you can interrupt me anytime you want. So that's perfectly fine. If you have any doubts, you can also note it down, and if you don't understand anything, you can ask at the end of this presentation. So yeah, I'll start with the presentation now. Everyone can see the screen. If you can see, if it's visible, just comment or just say that you Yes, are sir. able to see. Yeah, Yes sir, we can see. Yes, sir. perfect. Yeah. So before I start with the presentation, I would like you to know about the person whom I am working with. He's Mark Brandard. He is my inspiration, my guru, from whom I have learned this upcycling. I work with him in Orville, and it's been 2 years since I'm working with him, and he's really a very great guy. So if you are interested in upcycling, if you want to learn about upcycling after this workshop, you can just Google and you can read about him. You'll get to know many things about him. So he's Mark Brandard. He also gives workshops pan India regarding upcycling. He is known nationally as well as internationally. So you can see his bio on Google. And this is the team of Avengers. As you can see, all my masters in one picture. You can see all the gurus or main people who work as an upcycler. Yeah, on the extreme right, the person sitting below with the blue shirt, he's Ribu Vora, and he's the master of plastic. So if you have any doubts, any queries, or if you want to do more research on plastic, you can always search Ribu Vora on Google. He's the best person who can guide you regarding the plastics. So yeah, so what we will be discussing in this workshop, I'll just give an quick overview about this. The very first is, what is upcycling? Upcycling क्या होता है? वो obviously
हम सबसे पहले पॉइंट में कवर करेंगे। सेकेंड इज रिसाइकलिंग सिमिलर टू अपसाइकलिंग। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग में क्या डिफरेंस है, तो वो हम क्लियर करेंगे सेकेंड पॉइंट में। थर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ अपसाइकलिंग। अब अपसाइकलिंग कोई ऐसे ही नहीं कर सकता, उसके भी कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम क्लियर करेंगे कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं जब हम अपसाइकलिंग करते हैं। The fourth point is materials which can be used as or which can be upcycled. So basically it's the trash, what materials we can use to upcycle, how we can use it. So we'll be learning in the material section. After that, scope of upcycling in interior designing, जो आप सबके लिए बहुत important है कि इंटीरियर डिजाइन अपसाइकलिंग से कैसे लिंक्ड है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो, डिजाइनिंग की डिग्री है आपके पास, या आप परस्यू कर रहे हो और आपको आगे जाके अपसाइकलर बनना है, या आपको सिर्फ एज अ हॉबी इसे परस्यू करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। After that, we have benefits of upcycling, and obviously there's a positive and negative. So we'll be seeing about the drawbacks of upcycling, and at the end, we'll be seeing about the solution for a better future. We'll see in at the end of this video. So we'll start with the first point. The first point is, what is upcycling? As you all told, it is the process of converting discarded material into something useful, beautiful, of higher value. That's upcycling. आप जैसे जो स्टूडेंट्स मेरे जैसे हैं, मुझे इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, ये आपको स्क्रीन पे अगर दिखेगा, दो मटेरियल्स है। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है वो ब्रोकन वाइन ग्लास है, जो टूटा हुआ वाइन ग्लास है, और राइट साइड में एक बल्ब है, जो बल्ब डैमेज हो गया, जो हम यूज नहीं कर सकते, वो बल्ब है। तो इसको हम कैसे अपसाइकिल कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत ही रीसेंट प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है। मैंने क्या किया है कि जो वाइन ग्लास का टॉप पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है, उसे कट कर दिया है, और जो सेकंड बल्ब है उसको मैंने एक पर्टिकुलर एंगल में कट किया है, ताकि मुझे दोनों पार्ट मिले, दोनों पार्ट को मैं यूज कर सकूं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा कि क्या प्रोडक्ट मैंने बनाया है इससे। सो as you can see, this is the glass which I have made from bulb and broken glass. So basically it's increasing the value of the product. अगर मैं वो ग्लास ऐसे ही फेंक देता तो वो लैंडफिल में चला जाता, हम रीयूज नहीं कर सकते थे उसे, और जो वर्कर्स है जो वहाँ पे काम करते हैं उनके हाथ कट सकते हैं। या आई कैन सी शुभदीप raising hands. Do you have any question? So why have you kept the inner portion? Sorry, inner portion, which portion? The light का अंदर का पार्ट क्यों रखा है सर आपने, मतलब उसे क्यों डिस्कार्ड नहीं किया? Yes, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने एक स्पेसिफिक रीजन के लिए वो रखा है कि जो नीचे का पोर्शन है, जो आपको रेड ग्लास दिख रहा है, वो मैं यूज कर रहा हूँ एज एन एक्सेसरी। अब ऑब्वियसली उसमें लेड और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो मैंने वॉश कर दिए और क्लीन कर दिए, लेकिन कोई भी इसमें अपना ड्रिंक एंजॉय करना नहीं चाहेगा, तो मैं जो नीचे वाला पार्ट है आई वुड यूज इट एज एन एक्सेसरी, एंड जो ऊपर का पार्ट है, जो राउंड पार्ट है, उसे मैं यूज कर सकता हूँ एज अ ग्लास। सो दिस इज मल्टीपर्पज। ये मैंने कोई भी ग्लू से स्टिक नहीं किया। अगर आप बहुत ध्यान से इमेज को देखो तो यू विल सी अ वेरी स्मॉल 1 सेंटीमीटर ट्यूब इन द बेस, सो इट्स रिमूवेबल। आप उसे निकाल के वापस से जो ऊपर का पार्ट है वो भी स्टिक कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट बोथ द पार्ट्स। So yeah, the second upcycling is this. मेरे घर पे फेस्टिवल्स को बहुत मानते हैं, और गणेश चतुर्थी मेरे यहाँ पे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होती है। तो जब मैं ऑरोविल नहीं गया था, उससे पहले मैं जितने भी जो डेकोरेशंस थे गणपति के, वो थर्मोकॉल से करता था, गूगल से देख के, इससे उससे। और फिर मैंने जब बीच क्लीनिंग की एक जगह, जब मैंने वॉलंटियरिंग की, तो जब मैंने देखा कि जो गणेश की मूर्ति है और थर्मोकॉल्स है वो डिकम्पोज नहीं होते, वो यहाँ वहाँ से फ्लोट होते रहते हैं, तो दैट इज वेरी बैड फॉर एनवायरनमेंट। तो मैंने क्या किया, इस टाइम मैंने कबाड़ी वाले से
न्यूज़पेपर्स परचेज किए, 4 to 5 kgs ऑफ न्यूज़पेपर, और मैंने एक रूल सेट किया कि जो भी मैं डेकोरेशन बनाऊंगा वो इको फ्रेंडली होगा, सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल कैसे होगा कि मैं उसमें कोई भी ग्लू, टेप्स या एडेसिव्स यूज नहीं करूंगा। अगर मैं वो यूज करता हूँ, मैंने पेपर तो खरीद लिए, डेकोरेशन भी बना लिया, लेकिन जब मैं फेंकता हूँ तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो ये मैंने रूल सेट किए थे। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली एक चटाई जिसे हम मैट बोलते हैं, पेपर्स को फोल्ड किया है और एंड टू एंड मैंने राइस ग्लू से स्टिक किया है। और ऐसे ही एक आपको राइट साइड पे अगर इमेज दिख रहा है, मैंने एक मैट बनाया जो मैंने यूज किया अपने डेकोरेशन के बैकड्रॉप पे, जो आपको दिखेगा यहाँ पे। सो यू कैन सी हाउ आई हैव यूटिलाइज्ड दिस। ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं है, इसे हम एक स्टोरी भी पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे जो भक्त जन है हमारे, जितने भी लोग हैं, उनकी आवाज गणेशा तक जानी चाहिए। तो लोगों की आवाज कैसे जाती है, आजकल तो फोन्स हो गए, लेकिन पहले न्यूज़पेपर से लोग अपनी आवाज पहुंचाते थे। तो यू कैन आल्सो गिव पोर्ट्रे दिस मैसेज फ्रॉम द डेकोरेशन एज वेल। लास्ट ईयर, अगर आप सबको ये पता होगा, पात्रा वाली डिश जिसे बोलते हैं या पतराड़ी बोलते हैं, तो मैंने अपना लास्ट ईयर का जो डेकोरेशन है वो इससे किया था। इसका एक स्पेसिफिक रीजन था जो आपको आगे पता चलेगा। आप राइट साइड पे अगर इमेज देख रहे हो तो लीव्स है, जो ड्राइड लीव्स है उससे मैंने पेंडेंट लाइट्स बनाया है, और बैकड्रॉप में मैंने जो पतराड़ी लगाई है सारी। ऊपर पे मैंने एक सीलिंग बनाई थी। यस शुभदीप। सर, जो पीछे के आपने प्लेट्स यूज किए वो रीयूज किया था या यू हैव बाइट समथिंग? सॉरी आई कुडंट हियर यू। आपने पीछे के प्लेट्स को बाई किया है क्या, या फिर आपने कुछ उसका लाइक यू हैव बाय एंड नहीं, पुट और ये समथिंग? या डेफिनेटली आई हैव परचेज दिस पतराली। मैंने ये परचेज किया है मार्केट से, और मैंने फिर वो डेकोरेशन में यूज किया है। इसका भी एक स्पेसिफिक पर्पस है। पर्पस ये है कि जिन फ्रेंड्स ने या जिन रिलेटिव्स ने मुझे इस डेकोरेशन में मदद नहीं की है, उन सबको गणपति जाने के बाद मैंने उसी थाली में बिरयानी खिलाई है। तो ऑल इन ऑल इट्स यूज्ड। इस सबको मैंने वॉश करके अच्छे से बिरयानी परोस के वापस से डिकम्पोज कर दिया। तो इसमें यूजुअली हम जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो पेपर डिश या थर्मोकॉल डिश ऐसी सब चीजें यूज करते हैं जो लास्ट में हमें फेंकनी पड़ती है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गेट। ओके, सो या, so I guess upcycling is clear to everyone. Yeah, great. So we will start with our next point, which is recycling. What is recycling and how it's different from upcycling? तो recycling क्या होता है? Basically recycling में क्या होता है, जो भी products है वो फैक्ट्री में जाते हैं और उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, हीट से, प्रेशर से और इलेक्ट्रिसिटी से उसे कंप्रेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं लोग। नया प्रोडक्ट या तो सेम वैल्यू का होता है या फिर उसकी वैल्यू डाउनग्रेड हो जाती है, मतलब वैल्यू उसकी कम हो जाती है। जबकि अपसाइक्लिंग में हमेशा जो भी ट्रैश है उसकी वैल्यू ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं जाती। तो ये डिफरेंस है रिसाइकलिंग में और अपसाइक्लिंग में। अपसाइक्लिंग में हम जो फॉर्म है ऑब्जेक्ट का, जो शेप है, वो ज्यादा चेंज नहीं करते, उसे रिटेन रखते हैं, उसमें ज्यादा कुछ पिघला के या बहुत कट करके छोटे माइन्यूट पीसेस में हम उसे नहीं करते। जबकि रिसाइकलिंग में हम उसे बहुत फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग। सो यू कैन सी इन दिस एग्जांपल कि कैसे पेपर या बुक्स जो है वो रिसाइकल होता है, फिर वो फैक्ट्री में जाता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। अब रिसाइकल में कैसा है कि आउट ऑफ 100 ओनली 2% गेट्स रिसाइकल्ड, बाकी का जो 98% है वो लैंडफिल में चला जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हम वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते, अलग नहीं करते। अगर मेरे पेपर में किसी ने पान की पिचकारी मारी हुई है या कुछ खाना मिक्स है, तो उस पेपर को मैं रिसाइकल नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट दीज मटेरियल्स। सो वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है रिसाइकल करना, इसीलिए बहुत ज्यादा चीजें रिसाइकल नहीं है। इसलिए ज्यादा करके हमें चीजें अपसाइकल करनी चाहिए
ना कि रिसाइकल. सो या. थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अपसाइकलिंग. अब जो अपसाइकलिंग है उसके रूल्स क्या है. अगर मुझे अपसाइकल करना है तो मैं कैसे अपसाइकल कर सकता हूँ. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है थिंक लोकल एंड एक्ट लोकली. अभी इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ. जब मैं पहली बार ऑरोविल से वापस मुंबई आया, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी मार्क सर से और दूसरे डिजाइनर्स को देख के कि इन्होंने तो कचरे से इतना कुछ अच्छा बनाया. मैं भी मुंबई जाके कुछ ऐसे ही नई चीजें इन्वेंट करूंगा या कुछ अच्छी चीजें बनाऊंगा. तो मार्क सर जो है वहां पे टेट्रा पैक से जो मिल्क के कार्टन्स होते हैं उससे फर्नीचर बनाते थे. जब मैं मुंबई वापस आया और मैंने सर्च किया तो हमारे यहाँ पे वो टेट्रा पैक्स अवेलेबल नहीं थे. हम लोग यूजुअली जो अमूल की पैकेट्स होती है वो मिल्क यूज करते हैं. सिर्फ रेस्टोरेंट्स या होटल्स में वो टेट्रा पैक यूज होता है, घरों में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता. तो वो मुझे नहीं मिला. तो मैंने मार्क सर को कॉल किया कि मुंबई आके जो मेरा सपना था कि मैं एक अपसाइकलिंग स्टूडियो स्टार्ट करूँ वो तो पहले ही टूट गया. तो इसका सोल्यूशन क्या है. तो मार्क सर ने मुझे बताया कि जो सबसे पहला पॉइंट है थिंक लोकल एंड एक्ट लोकली. कि जो मेरे सराउंडिंग में है लोकली अवेलेबल, जो कचरा मेरे आजू बाजू है उसे मैं लेके कुछ नया बनाऊं. ना कि मैं अगर मैं मार्केट मैंने इंस्पायर हो गया मैं मार्क सर से और मैं मार्केट में जाके कैन्स खरीद रहा हूँ, अपसाइकल के टेट्रा पैक्स खरीद रहा हूँ, फिर उससे फर्नीचर बना रहा हूँ. तो दैट्स नॉट अपसाइकलिंग. दैट इज एब्सोल्युटली वेस्ट. मैं जो प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ. तो मुझे जो लोकली जो मुझे दिखता है उसे ही यूज करना है. तो लोकली मुंबई में मुझे क्या दिखा, जब मैंने सर्च किया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा बॉटल्स दिखाई दिए. लिकर बॉटल्स, बियर बॉटल, सारा वोडका बॉटल, मार्टिनी बॉटल्स, बॉटल्स ही बॉटल्स सब जगह पे. वहाँ पे लोग बहुत हेल्दी चीजें यूज करते हैं तो वहाँ पे टेट्रा पैक मिलता है. और हमारे यहाँ का हेल्दी तो आप सबको पता ही है कि बॉटल्स है. तो मैंने फिर ग्लास को अपना सब्जेक्ट बनाया और ग्लास से मैंने शुरू कर दिया. जहाँ पे भी मुझे बॉटल्स मिलती है मैं कलेक्ट करता हूँ, वॉश करता हूँ और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता हूँ. जैसे पेंडेंट लाइट्स, रिंग्स, इयररिंग्स, एक्सेसरीज, फर्नीचर्स और बहुत कुछ उससे. सो ग्लास इज माय मटेरियल इन मुंबई. सो ये सबसे पहला पॉइंट था थिंक लोकल एंड एक्ट लोकली. सेकंड है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूज प्रीमियम वेस्ट, क्लीन वेस्ट. अगर जो वेस्ट है या जो कचरा है जिससे हमें अपसाइकल करना है वो क्लीन नहीं है तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं. नहीं यूज कर सकते. जैसे बॉटल है वो किसी गटर में पड़ी हुई है या किसी नाली में पड़ी हुई है तो कोई उसे जाके उठाएगा नहीं, राइट. सो इट हैज टू बी क्लीन. अब वो कैसे होगा, प्रीमियम वेस्ट हमें कैसे मिलेगा, सेग्रीगेशन से. मुंबई में या कोई भी मेट्रो सिटीज में जहां तक मैंने देखा आजकल सोसाइटीज में ड्राई और वेट वेस्ट अलग करते हैं लेकिन बहुत सारी जगह पे वेस्ट अलग नहीं करते. हम एक ही डस्टबिन में जो हम दूध सुबह पीते हैं उसी थैली में जो खाने का कचरा है वही डालते हैं, उसमें ही न्यूज़पेपर डालते हैं और सब कुछ इकट्ठा करके एक डस्टबिन में डाल देते हैं. वो सीधा लैंडफिल में जाता है. ना तो हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं ना अपसाइकिल कर सकते हैं. तो प्रीमियम वेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट करें. ऑरोविल में अप्रोक्सीमेटली 70 सेग्रीगेशन टाइप्स है. एक कचरा है उसे 70 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है. हमारे यहाँ पे वो चीज अभी तक नहीं आई है लेकिन जैसे आपने देखा ये कोरोना वगैरह जो चल रहा है उससे थिंग या जो चीजें है वो बदलने वाली है बहुत जल्द. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन सोर्स एंड फ्री डिजाइन. जैसे मैं आप लोगों की बात करूं, जैसे शुभदीप ने अगर कोई असाइनमेंट बनाया है और बहुत मेहनत की है, 6 महीने एक प्रोजेक्ट पे उसने लगा दिए और फिर हिनल ने उसका प्रोजेक्ट कॉपी कर दिया तो शुभदीप को बहुत बुरा लगेगा कि यार 6 महीने से मैंने मेहनत की है और सारा क्रेडिट है वो हिनल लेके जा रही है. तो ये चीजें होती है जब हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते हैं. लेकिन अप साइक्लिंग में ऐसा नहीं है. अप साइक्लिंग में कोई कॉपीराइट नहीं है. कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये मेरा है तो इसे कॉपी नहीं कर. इसमें उल्टा है. तो ये सबके लिए ओपन है, कोई भी अपसाइकल कर सकता है और डिजाइन जो है वो फ्री है.
मतलब आप कोई भी किसी भी डिजाइन को कॉपी कर सकते हो, इससे इंस्पिरेशन लेके कुछ नया बना सकते हो. So that's third point. I hope it's clear to everyone. Yeah, great. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So we'll move ahead. Materials. अब कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स है जिसे हम अपसाइकल करते हैं या कर सकते हैं, जैसे और ये जो मटेरियल की लिस्ट मैंने स्क्रीन पे रखी है, ये ऑरोविल में जो मास्टर्स है सारे अपसाइकलिंग के, उसके साथ मैं वो ये मटेरियल्स यूज करके अपसाइकल करता हूँ. जैसे सबसे पहला है एवोकाडो स्किन. जो एवोकाडो हम खाते हैं उसकी जो स्किन है उसे ड्राई करके हम उसकी इयररिंग्स, हेयर क्लिप्स और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सीडी आजकल तो कोई सीडी यूज नहीं करता, लेकिन जो कबाड़ी वाला है उनके पास बहुत सारी सीडी स्टॉक में होती है जो लैंडफिल में चली जाती है. तो उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, हम इयररिंग्स, पाउच और बहुत सारे प्रोडक्ट्स. ये सेशन खत्म होने के बाद मैं निकिता मैम के साथ एक लिंक शेयर करूंगा. अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स देखना है तो आप पीडीएफ में सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि कौन से मटेरियल से क्या प्रोडक्ट्स बने. जैसे ग्लास है, लेदर है, न्यूज़पेपर, पेट बॉटल्स मतलब जो सिंगल टाइम यूज बॉटल, जो पानी की बॉटल्स होती है हमारी, दैट इज पेट बॉटल्स. पीवीसी, जो बैनर्स या होर्डिंग्स लगी होती है वो पीवीसी है. रबर ट्यूब्स, टेप्स, टेट्रापैक, सीड्स, विनाइल डिस्क, वुड बाउल्स. सो ये सारे मटेरियल्स है. सीड्स, किसी को पता है जब हम ट्रैकिंग करने जाते हैं तो कुछ कांटे वाले सीड्स होते हैं जो हमारे कपड़ों पे चिपक जाते हैं. अगर आपने देखा है या ट्रैकिंग जो करता है उससे पता होगा कि छोटे छोटे सीड्स हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं. तो बाग सर ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है उसका. एक फैब्रिक के ऊपर उसे ऐसे पोर्ट्रे या ऐसे प्लेस करते हैं कि आपको एक एक्टर का या किसी का भी एक फोटो उसमें नजर आएगा. आगे एग्जांपल्स में आपको वो दिखेगा. जैसे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो सिरामिक मग्स है. जो सिरामिक मग्स जब हम बनाते हैं तो भट्टी में जब हम डालते हैं, सारे जो मग्स है वो सक्सेसफुली बाहर नहीं निकलते, कुछ क्रैक हो जाते हैं, बहुत सारे कप्स वेस्ट हो जाते हैं, डिसकलर की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं. तो जो रिजेक्टेड पीस है उसका हम एक पेन स्टैंड बना सकते हैं, या फिर ये मग को अगर हम वॉल पे हैंग करें तो वी कैन यूज इट एज अ हैंगर. अगर हमें कपड़े लटकाने हैं तो जो कप का हुक है उसमें हैंगर को अटैच कर सकते हैं. सो दैट वी कैन यूज इट लाइक दैट. सेकेंड जो है वो है बॉटल, ग्लास बॉटल. उसके ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक कैप लगा हुआ है. जो हमारी बेसिकली ये एक वाइन बॉटल है, आप कोई भी बॉटल ले सकते हो. और जो हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, थम्स अप, ड्यूक्स, मैंगोला, जो भी बॉटल्स है, उससे आप कट करके जब हीटर से हीट करते हो तो प्लास्टिक बॉटल के साथ चिपक जाता है और वो वाटर प्रूफ हो जाता है. पता नहीं आप लोगों ने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा है या नहीं, बट प्लास्टिक इज द मोस्ट टॉक्सिक मटेरियल ऑफ ऑल. प्लास्टिक से आप फिजिकली भी इल हो सकते हो और मेंटली भी. वी कैन टॉक इट अबाउट लेटर, बट प्लास्टिक इज वेरी हजार्डस. तो अगर आपके घर में आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज कर रहे हो तो प्लीज उसे डिस्कार्ड कर दो और ग्लास बॉटल्स या स्टेनलेस स्टील बॉटल यूज करना स्टार्ट करो. लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो एक चेयर है, 3 लेगेड चेयर. चेयर के जो लेग्स है वो रॉट आयरन या एमएस माइल्ड स्टील. अगर आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कॉलम्स होते हैं उसके बाहर ये सब ऐसे सलिए निकले हुए होते हैं, रीबार्स इसे बोलते हैं. तो कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे स्क्रैप्स ऐसे ही पड़े होते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्क्रैप मेटल को बेंड करके फर्नीचर बना सकते हैं. ये जो लेग्स है वो सारे रीबार से बने हैं. जो वेस्ट मेटल है, जो ऑफकट्स है, जो यूज नहीं होते, जंग लगे हुए होते हैं. बेसिकली आप देखना आपके यहाँ पे अगर किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है तो वहाँ पे बहुत ऐसे रॉड्स ऐसे ही पड़े होते हैं कटे हुए और जंग लगे हुए. तो हमें कोई अच्छा रॉड नहीं चाहिए, हम जो जंग लगे हुए रॉड्स है उसे ही यूज करके वेल्ड करके ये फर्नीचर बना सकते हैं. उसकी जो सीट्स है वो कुछ नहीं है, सिर्फ कार्डबोर्ड है. कार्डबोर्ड को जब हम कंपाइल करते हैं और उसके ऊपर पेपर मैश लगाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल क्रिएट होता है जिससे हम ये चेयर बना सकते हैं. सो दिस इज 3 लेगेड चेयर. और राइट साइड पे जो आप देख रहे हो वो है मोबाइल स्टैंड. एक टेम्पलेट बना के जब हम कार्डबोर्ड को स्टिक करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों में उसे यूज कर सकते हैं. इसमें जैसे मोबाइल रखा हुआ है, आप अगर ऊपर उसे रख दो
तो यू कैन यूज इट एज अ नाइट लैम्प और टेबल लैम्प। हमने उसे होल भी दिया हुआ है, तो आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। जब आप मोबाइल का टॉर्च ऑन करके जो ऊपर निश दिया है उसमें रख दोगे, तो आपको बुक रीड करनी है तो आप बुक रीड कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जब हम अपसाइक्लिंग करते हैं तो कोई भी केमिकल या डेंजरस ग्लू यूज नहीं करते, जैसे फेविकॉल है या फेविक्विक है, झटपट है, जो भी सॉल्यूशंस है वो हम यूज नहीं करते। वी यूज राइस ग्लू। राइस से जो ग्लू बनता है वही हम यूज करते हैं। राइस ग्लू बनाना बहुत इजी है, वो हम नेक्स्ट वर्कशॉप में सीख सकते हैं। लेकिन फॉर पेपर, राइस ग्लू इज द बेस्ट मटेरियल वी कैन यूज टू स्टिक, और एनी काइंड ऑफ पेपर, कोई भी तरीके का अगर पेपर है, अगर आपको स्टिक करना है तो राइस ग्लू इज द बेस्ट। ओके, सो आर वी सर क्लियर टिल हियर? या सर, आपने जो बॉटल्स के बारे में बोला ना, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह हमें जो ग्लास बॉटल्स यूज करनी चाहिए, बट इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी जो बैम्बूस के जो बॉटल्स बन रहे हैं, उससे अपना इंडियन का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ता है, राइट? तो आई फील कि प्लास्टिक अपने ग्लास बॉटल से ज्यादा बैम्बू बॉटल्स प्लस जो मड के बॉटल्स बनते हैं जो गांव में, वो बेटर है। एब्सोल्युटली, वो बहुत बेटर है और इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव है यूज करने के लिए। लेकिन ये जो कचरा हमने फैलाया है, ये जो बॉटल्स है, वो एक दो में नहीं है, लाखों और बिलियंस एंड ट्रिलियंस में ये बॉटल है। उसका कुछ तो हमें करना होगा ऑब्वियसली। जैसे आपने बताया, बैम्बू के जो बॉटल्स है, मड बॉटल्स है, जो हायर मिडिल क्लास लोग है या अपर मिडिल क्लास या जो हाई क्लास पीपल है वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास लोग है जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो लोग ये जो वेस्ट है उससे अपना इनकम भी बना सकता है। अगर इनकम उसे बेचना भी नहीं है तो घर में वो यूज कर सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं तो हमारी एज 10 साल कम हो जाती है। प्लास्टिक इज वेरी टॉक्सिक, सो वी कैन यूज इट लाइक दैट वे। सर बट इन मुंबई, जैसे कि इन आर इंडिया, जहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट है, इफ इवन मुंबई में भी हम गार्बेज के लिए जाए, सी साइड्स पे भी प्लास्टिक बॉटल्स बहुत वेस्ट पड़े रहते हैं। हाउ कैन वी लाइक डिमोलिश दैट थिंग, और हाउ कैन वी यूज दैट थिंग बेसिकली? जैसे कि अभी प्लास्टिक से जीन्स बन रहे, बट देन ऑल्सो देर आर सो मच प्लास्टिक जो आज भी है बाहर, तो हाउ कैन वी लाइक स्टॉप दैट थिंग, और हम उस प्लास्टिक को भी थोड़ा बहुत यूजफुल ला सकते हैं? ये आज का वर्कशॉप इसीलिए है, अपसाइक्लिंग इज द आंसर। लेकिन जैसे आपने बताया इतना सारा प्लास्टिक है, तो जैसे हम गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, उनको स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना चाहिए। ऐसे प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसे आप कभी खत्म नहीं कर सकते, वो अनंत है। जैसे ये जो पेपर है उसको आपने जला दिया, खत्म हो गया, लेकिन प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता। अगर आपने जलाना चाहा, बेसिकली क्या होता है कि जो आपने बीचेस पे प्लास्टिक देखा, गवर्नमेंट पे जो बहुत प्रेशर आ जाता है कि प्लास्टिक का क्या करे, तो वो लोग क्या करते हैं, एक इंक्यूबेटेड चेम्बर में ये सब प्लास्टिक जला देते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है खत्म करने के लिए। लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो हार्मफुल फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो एयर में लीक होता है, पानी में लीक होता है और डाइऑक्सिन बन जाता है। डाइऑक्सिन इज द मोस्ट टॉक्सिक गैस। अगर वो जलाते भी नहीं है, अगर वो ओशन में है, तो प्लास्टिक धीरे धीरे अलग होता है, जिसे आजकल बहुत ट्रेंड में है, माइक्रो प्लास्टिक भी बोलते हैं। अब ये सारी टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आपके घर पे अगर प्लास्टिक बॉटल है तो उसमें पानी भरो और उसे 5 to 10 मिनट्स बहुत विगरसली या स्ट्रांगली हिलाओ उसे, और उसके बाद आप उसमें देखो तो आपको बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स दिखेंगे लाइट में जब आप देखोगे। तो दैट इज माइक्रो प्लास्टिक, जो अगर आपके शरीर में एक बार चला जाता है तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उसे आपके बॉडी से नहीं निकाल सकती। सो इट्स दैट बैड। लेकिन ये सब चीजें हमें कोई नहीं बताता। सो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने बस प्लास्टिक पे बैन लगा दिया, प्लास्टिक खत्म कर दिया कि अब प्लास्टिक का प्रोडक्शन नहीं करना है, राइट? हमने ऐसा गवर्नमेंट ने कर भी दिया
तो जो इतना सारा प्लास्टिक है उसका क्या, वो धीरे धीरे हम बैन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपसाइकल करना होगा, उसके मल्टीपर्पज यूजेस देखने होंगे। और जैसे शुभदीप ने बताया कि आजकल ये जो प्लास्टिक है वो फैब्रिक्स में यूज किया जाता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड पॉलीएस्टर या एक्रेलिक, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। जब हम वो फैब्रिक्स पहनते हैं तो हमें स्किन डिजीजेस होते हैं, हमें वो शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम वो यूज करते हैं, जब हमारा पसीना निकलता है और जो मटेरियल हमारी बॉडी से रब होता है, तो उसके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म में हमें पता चलता है, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, वैसे बहुत सारी चीजें जो उससे होती है। सो इट्स बेटर नॉट टू रिसाइकिल एंड अपसाइकिल द प्रोडक्ट। ओके, सो अब जो आप लोगों की काम की बात है, अपसाइक्लिंग एंड इंटीरियर्स। अब इंटीरियर डिजाइनिंग अगर मुझे करना है तो उसमें अपसाइक्लिंग को कैसे इंकॉर्पोरेट करे, अपसाइक्लिंग का यूज कैसे करे, क्या इंटीरियर डिजाइनर अपसाइक्लिस्ट बन सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या अगर आपको मास्टर्स करना है या कुछ भी करना है अपसाइक्लिंग में, तो क्या वो हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। जैसे मैं अभी मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं जब ऑरोविल से वापस आया तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे कोरोना वगैरह का सिचुएशन होगा। मैं तो ऐसे ही मुंबई विजिट करने आया था 1 वीक के लिए, और यहाँ पे परमानेंटली लॉकडाउन हो गया। जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुआ तब मेरी फैमिली एक नए घर पे शिफ्ट हुई, विच इज अ वेरी नाइस सी व्यू फ्लैट ऑफ 800 स्क्वायर फीट। अब इसमें कुछ भी इंटीरियर्स नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं आऊंगा और मेरी जो टीम है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, कारपेंटर्स है, उनको काम देके डिजाइन समझा के चला जाऊंगा, लेकिन कोरोना के वजह से सब जो मेरी टीम थी सब भाग गए, गाँव भाग गए। तो फर्नीचर बनाने वाला के एक पंखा फिट करने वाला कोई नहीं था यहाँ पे। तो इस पे मैंने थोड़ा सा सोचा कि अब जो कोरोना है वो इतना जल्दी तो खत्म होने नहीं वाला, और वो खत्म नहीं होगा और फर्नीचर नहीं होगा तो घर वाले मुझे लटका देंगे, तो मुझे कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरे ऑरोविल के टेक्निक्स थे जो मैंने वहां पे सीखा, वही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि जो स्मॉल स्केल पे जो भी मटेरियल्स है, क्या हम उसे एक बड़े स्केल पे यूज कर सकते हैं क्या। जैसे आपने वो फोन स्टैंड देखा जो कार्डबोर्ड से बना था, क्या हम कार्डबोर्ड को यूज करके फर्नीचर बना सकते हैं? क्या हम बॉटल्स को यूज करके फर्नीचर बना सकते हैं? और ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स है जिससे हम चीजें बना सकते हैं? तो आगे की स्लाइड में आपको मैं बता रहा हूँ। जो मैंने किचन से स्टार्ट किया है, मेरा किचन, मैंने एक डिसीजन लिया है कि मेरा जो पूरा घर है वो पूरा जितना भी है वो थ्रैश से बनाऊंगा। जितना भी वेस्ट है, जितना फर्नीचर है, एक्सेसरी है, सब कुछ, एवरीथिंग आई वुड बी मेकिंग फ्रॉम वेस्ट। सो आई स्टार्टेड विद दैट एंड आई स्टार्टेड विद द किचन कैबिनेट्स। सो हियर इज व्हाट आई डिड। सबसे पहले मैंने क्या किया कि थिंक लोकली, मेरे घर पे क्या क्या अवेलेबल था या आसपास क्या था, मैंने वो इकट्ठा करना स्टार्ट किया। मुझे क्या मिला, जो हार्डवेयर के लिए बेसिकली ड्रिल मशीन का एक चक है, ये सारे नट बोल्स या स्क्रू है जो ऐसे ही पड़े थे सब। राइट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम के एल एंगल्स है, और बॉटम में एसीपी शीट्स है। एसीपी का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल्स। ये बेसिकली आप जब मॉल्स के बाहर फसाड में देखते हो वो शीट्स है, उसके ऑफकट्स है। कुछ भी परचेज नहीं किया है, ये जो लोकली अवेलेबल है या जो मेरे पास था उसी को यूज करके मैंने ये बनाया है। तो सेकेंड मटेरियल मैंने कार्डबोर्ड यूज किया है। अब जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैंने अप्लायंसेस खरीदे थे, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब खरीदा था। तो उसके जो कार्डबोर्ड्स थे वो मैंने प्रिजर्व करके रखी। तो आप पहले इमेज में अगर आप देख रहे हो तो मैं कार्डबोर्ड को कट कर रहा हूँ। सेकेंड में कार्डबोर्ड थिन होता है, बहुत थिक नहीं होता। अगर हमें फर्नीचर बनाना है सो दैट शुड बी थिक। अगर हम इंटीरियर लैंग्वेज में बात करें तो एक प्लाई की थिकनेस मिनिमम 19 mm या पौने का प्लाई होना चाहिए अगर मुझे फर्नीचर स्ट्रेंथ में अच्छा बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड अप्रोक्सीमेटली 6 mm का होता है, तो मैंने 3 कार्डबोर्ड को स्टिक करके एक शीट बनाई।
प्लाईवुड शीट, जैसे प्लाई होती है, प्लाई यूजुअली विनियर की शीट्स को कंपाइल करके बनती है, मैंने कार्डबोर्ड की शीट्स को कंपाइल करके ये कार्डबोर्ड प्लाई बना है। अब मैंने इसमें भी फेविकॉल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, हमने राइस ग्लू ही यूज किया है इसके लिए। राइस ग्लू से ये किया है और फिर पेपर से उसे कवर कर दिया है। आप राइट हैंड साइड पर अगर इमेज देखोगे टॉप कॉर्नर में, तो ये जो पैनल्स है वो सब कुछ उससे ही बने हैं। सो बेसिकली अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्टर के पास बनवाता, मुंबई के रेट्स अगर मैं देखूँ तो लोएस्ट रेट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर इफ आई कंसिडर, तो ये जो सिर्फ इतनी एक ट्रॉली है उसका कॉस्ट मुझे लेबर के साथ मिनिमम 5,000 रुपये लगता था, और जब मैंने इसे अपसाइकिल किया तो मुझे हार्डली 500 रुपीज का कॉस्ट लगा है। सो यू कैन सी द डिफरेंस। और बनाने के बाद एक खुशी भी होती है कि मैंने कुछ अच्छा बनाया है। तो आप जैसे इमेज में देख रहे हो, ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल जो कैबिनेट होता है वैसे ही दिखता है। आगे जो है वो एसीपी शीट है, एल्यूमिनियम एल एंगल्स के मैंने प्रोफाइल हैंडल्स बनाए, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मसाला पुल आउट है, उसमें मैंने ड्रिल मशीन का चक यूज किया एज अ हैंडल, सो एनीवन कैन ग्रैब इट एंड यूज इट एज अ नॉब। सर जो आपने कार्डबोर्ड यूज किया है वो पानी से खराब नहीं हो जाएगा? मतलब कभी पानी का कुछ ये हुआ एंड फ्रॉम डाउन पोर्शन इट विल गेट वेट और वो सॉफ्ट हो जाए तो? राइट, तो ये सबसे पहला कंसर्न होता है जब हम किचन में फर्नीचर बनाते हैं। हम अगर प्लाई से भी बनाते हैं तो हमारा कंसर्न होता है कि मरीन प्लाई यूज करो, ये करो, वो करो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ डिजाइनर, आपने कैसा काम किया है। प्रोफेशनल डिजाइनर्स क्या करते हैं कि जब भी कोई फर्नीचर या कुछ बनाते हैं उसमें जो प्लेटफॉर्म है वो 2 या 3 इंच रेस करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर की लैंग्वेज में कहूँ तो एक टप्पा बनाते हैं, तो नीचे से कभी पानी मेरे कैबिनेट्स में नहीं लगेगा। सेकेंडली, अगर मैं ऊपर से किचन को क्लीन कर रहा हूँ और अगर कुछ पानी नीचे आया भी तो बहुत ही लेस क्वांटिटी में होगा। मैंने क्या किया है, जो मेरा न्यूज़पेपर है उस पर वार्निश कर दिया है। जब मैंने न्यूज़पेपर रैप किया तो उसके ऊपर एक वार्निश का कोट कर दिया है मेरे पास, क्योंकि वार्निश था अवेलेबल, तो उससे एक वाटरप्रूफ का कोट हो गया। अगर आपके पास वार्निश नहीं है तो आप ऑयल पेंट्स यूज कर सकते हो, ऑयल पेंट कर दो उसे, तो उससे भी वो वाटरप्रूफ हो जाएगा। ऑयल पेंट भी नहीं है तो एकदम सिंपल जो राई का तेल होता है, लिंसेड ऑयल जिसे बोलते हैं, अब वो भी अगर लगा दोगे या वैक्स लगा दोगे तो भी पानी से आपका फर्नीचर खराब नहीं होगा। और आप होली तो खेलने नहीं वाले उसके साथ, तो इतना पानी नहीं जाएगा उस पे, सो And इट कैन so बेयर fire दैट अमाउंट ऑफ वाटर। catch करने के chances? फायर कैच करने के चांसेस डेफिनेटली है, लेकिन जैसे मैंने एसीपी शीट आगे लगाई है तो चांसेस थोड़े से कम हो गए। सर बट बेसिकली जो फायर और जो वाटर का है, बट मीन्स इफ आई कंपेयर्ड विथ प्लाईवुड तो इसमें थोड़ा चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लाइक हाँ, इवन फॉर फर्नीचर ऑल्सो। आई अगर वुड हम कोई से दूसरे, या सर, दूसरे फर्नीचर्स भी बनाते हैं सर, बाय चांस देयर इज सम फायर और वाटर, जैसे कि हॉल में भी रहता है और बहुत टाइम होता है कि देयर आर चिल्ड्रंस एट होम एंड दे थ्रो अप वाटर्स, लाइक देयर आर सो मेनी चाइल्ड्स, जो बच्चे लोग रहते हैं जो घर पे पानी फेंक देते हैं। अब मेरे जैसे गांव में बच्चे लोग हैं जो पानी मतलब बहुत टाइम होता है मस्ती से बाल्टी भी ये कर देते हैं, तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, तो जो डाउन पोर्शन है वो तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाता होगा। राइट, तो यहाँ पे काम आता है डिजाइनर का। अगर कोई बेसिक, अगर लेमैन इसे बनाता है तो ये सारे पॉइंट्स पे फोकस नहीं करेगा। जैसे आपने बताया कि कोई बच्चा है, अगर वो पानी से खेल रहा है तो आगे एसीपी की शीट होने की वजह से उसमें पानी, सबसे पहले तो पानी एंटर नहीं करेगा। बाई चांस एंटर हो भी जाता है, जैसे मैंने बताया कि मैंने वार्निश का कोट किया हुआ है, आप वार्निश नहीं है तो ऑयल पेंट यूज करो, आप वैक्स यूज करो, तो पानी लगने के चांसेस नहीं है। और अगर मैं फायर की बात करूँ तो इफ यू कंपेयर दिस मटेरियल, ये वुड के कंपैरिजन में इतना फायर प्रूफ नहीं है। वुड इज कंबस्टिबल, वुड जलेगा और ज्यादा टाइम तक जलेगा, जबकि ये जो मटेरियल है
वो भी जलेगा, ऐसा नहीं कि ये मटेरियल नहीं जलेगा, लेकिन ये जल के तुरंत राख हो जाएगा, फायर को ज्यादा स्प्रेड होने नहीं देगा। क्योंकि मैंने एसीपी और ये सारी चीजें यूज की है तो उसमें चांसेस कम है फायर लगने के। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भीषण आग भी लग जाती है तो ये जल के वहीं पे खत्म हो जाएगा, आग को बढ़ाएगा नहीं। सर आपने जो सामने का प्लाईवुड मतलब जो आपने बनाया है वो शीट, वो आपने चिपका ये स्क्रू किया है या हाउ यू फिट दैट थिंग विद द चैनल्स एंड द ड्रॉर्स एंड ऑल? यस, अगर आपका कंसर्न एस्थेटिक नहीं है तो आप स्क्रू से उसे फिट कर सकते हो, लेकिन मेरा कंसर्न एस्थेटिक था। मैं एक थीम या स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मिनिमलिस्ट या मॉडर्न जैसे डिजाइन अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो उसमें हम स्क्रूज नहीं बता सकते। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप स्क्रू करो और पीछे से नट फिट कर दो, उससे आपका वो फिट हो जाएगा। लेकिन मैंने सिलिकॉन यूज किया है। अब ये जो सिलिकॉन है वो भी अपसाइकल्ड है। जब मैं नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ तो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्होंने सिलिकॉन यूज किया था विंडोज को सील करने के लिए। लेकिन कैसा होता है कि जो सिलिकॉन है वो पूरा यूज नहीं करते, वो कुछ अमाउंट, जैसे एक ट्यूब इतनी है तो उसमें से इतना पोर्शन यूज करता है, उसके बाद में वो गन अच्छे से चलती नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स के पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो जो इतना पोर्शन बचा है छोटा सा वो फेंक देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वैसी चीजें कलेक्ट करता हूँ, उस सारे को कट करके फिर उसमें से जो सिलिकॉन निकलता है उसे एज ए एडेसिव यूज कर रहा हूँ। ये डेफिनेटली इको फ्रेंडली मटेरियल नहीं है, लेकिन वो सूख के लैंडफिल में जाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज करूँ। सर तो आपने जो मेन ड्रॉर का जो ये अपना किचन सेट का वहां पे और जो सामने आपने लैमिनेट लगाया है और उन दोनों को स्टिक करने के लिए यू हैव यूज सिलिकॉन। राइट, हैंडल्स को मैंने सिलिकॉन से स्टिक नहीं किए, मैंने उसे रिमूवेबल रखा है कि जैसे मुझे अगर पसंद नहीं आया तो मैं हैंडल निकाल के, जैसे आपको स्क्रूज अगर दिख रहा है तो मैं स्क्रूज रिमूव करके एक नया हैंडल लगा सकता हूँ। लेकिन जो शीट है उसे मैंने सिलिकॉन से स्टिक कर दिया है। आगे जाके अगर मुझे उसे कलर करना है या पेंट करना है तो मैं सब कुछ उसके ऊपर कर सकता हूँ हैंडल्स निकाल के। और किसी को कुछ डाउट इसमें, कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज? सर हाउ ड्यूरेबल इट इज, मतलब अब जब हम लोग प्लाई का बनाते हैं तो वो मतलब ज्यादा साल भी चलता है, तो ये कितना चल सकता है? एज ए इंडियन सबसे पहला जो हमारे दिमाग में सवाल आता है वो आता है यही कि कितना साल चलेगा। हम सब में मजबूती देखते हैं, जैसे आप अगर प्लाईवुड की भी बात करो तो उसमें भी दीमक लग जाता है, वाइट एंड्स लग जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स आती है उसमें। लेकिन प्लाईवुड से डेफिनेटली अगर आपने इसे प्रिजर्व किया, मेंटेन, अगर किसी भी चीज को आप मेंटेन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये मटेरियल 10 साल तक चल सकता है विदाउट एनी इश्यूज। सर अगर मुझे ये मेरे क्लाइंट को सेल करना है कि चलो हम अपसाइकलिंग से ये बनाते हैं, तो मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस कैसे करूं? जैसे आपने कहा प्लाईवुड में भी दीमक लगता है, कीड़े लगते हैं, बट वी हैव सॉल्यूशंस नाउ राइट, जो हम मिक्स करते हैं एंड वी पुट दैट कोट, तो उसमें थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। तो हाउ विल, तो क्लाइंट तो बोलेगा ना व्हाई आई विल मेंटेन दिस थिंग, मैं अपना इसमें जाऊंगा, मैं उसमें थोड़ा खर्चा करूंगा, अपसाइक ये एक लेयर मारूंगा तो मैं उस पे जाऊंगा, तो व्हाई आई विल गो फॉर दिस। तो हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट पर्सन कि दिस इज मोर बेटर देन दैट? Cost efficient yes, but how the durability I can explain him ki this is more better from that. वेरी गुड क्वेश्चन शुभदीप। जैसे अपसाइकलिंग अगर मैं बात करूं तो अगर ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सब क्लाइंट को पकड़ के या खुद अपसाइकलिंग स्टार्ट कर दूं। अपसाइकलिंग मेरा पैशन है, ये मुझे पसंद है, इसलिए मैं अपसाइकलिंग कर रहा हूँ। अपसाइकलिंग करना बहुत इजी नहीं है, कचरों के साथ डील करना इजी नहीं है। अगर ये आपका पैशन है, जैसे आपको क्लाइंट की कोई ऐसी नीड है कि क्लाइंट स्पेसिफिकली अगर बोल रहा है आपको कि मुझे ये जो मेरा पूरा घर है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, तब आप ये मटेरियल यूज करते हो। ना कि आप हर क्लाइंट को पकड़ के बोलो कि नहीं आप प्लाईवुड यूज मत करो, आप ये मटेरियल यूज करो, आपके पैसे बचेंगे, ये वो नहीं सुनने वाले।
ठीक है, तो अगर जिस क्लाइंट को सच में ऐसी कोई नीड है कि उसे अपसाइकिल करना है या सस्टेनेबिलिटी दिमाग में रखना है, तो ही आप उसे सजेस्ट करोगे कि ये मटेरियल यूज करो। ओके, सो विल मूव अहेड। अब अपसाइक्लिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट है, इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। अभी इसका मतलब क्या है कि जैसे एक बनिए की दुकान है, उसमें चावल पड़े हुए 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने स्टॉक्स आते गए, जब चावल बिकेंगे नहीं तो क्या वो बनिया नया चावल खरीदेगा? नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं खरीदेगा। तो इसमें भी वैसा ही है कि जब आप अपसाइकिल से फर्नीचर बना रहे हो, ठीक है, फर्नीचर बना रहे हो, एक्सेसरीज बना रहे हो, तो मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है उसमें अपसाइक्लिंग हेल्प करेगा कि जो इनफाइनाइट प्रोडक्शन हम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, लाखों करोड़ों प्लास्टिक बॉटल, लाखों करोड़ों चेयर्स बना रहे हैं, वो रुक जाएगा। इसे टाइम लगेगा लेकिन ये एक सोल्यूशन हो सकता है अपसाइक्लिंग का। सेकेंड, इट स्टिमुलेट्स द क्रिएटिविटी एंड हैंडमेड वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप कोई भी चीज अपने हाथों से बनाते हो तो आपको उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं इस लॉकडाउन की बात करूँ तो आप लोगों ने खाना बनाया होगा सबने। जब हम खाना अपने हाथों से बनाते हैं तो हम 50 बार अपने घर वालों से पूछते हो कैसा लगा, कैसा लगा, खाने के पहले भी और खाने के बाद भी, अच्छा था, ये था, वो था, क्योंकि हमने खुद ने अपने हाथों से बनाया। इसमें एक वैल्यू है। यही चीज अगर हम रेस्टोरेंट से मंगा के खाते हैं तो हमें उतनी वैल्यू नहीं रहती। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपसाइकिल करते हो तो उसकी आपको एक वैल्यू होती है, आपको बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि आपने एक मटेरियल को ट्रैश में जाने से बचाया है। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट, that you enhance your handmade skill and you get more and more creative। जैसे अभी शुभदीप पूछ रहा था कि अगर मेरे घर पे बच्चे हैं और वो पानी फेंक रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आग लग जाती है तो क्या है। तो आप बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आप सोच रहे हो उसके बारे में, नए आइडियाज आएंगे आपको अगर आप अपसाइकिल फॉलो करते हो तो। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। Third point is it encourages the originality and contributes to create unique ambience। हर एक प्रोडक्ट जो आप बनाते हो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बनता है और हर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग होगा, ये गारंटीड है। अगर आपने कुछ कचरा उठाया, आपने एक चीज बनाई, तो उसमें जो फ्लॉज और डेंट्स है, जरूरी नहीं है सेकेंड जो आप प्रोडक्ट बनाओ उसमें वो होगा। तो यूनिकली दोनों प्रोडक्ट creative बनेंगे। That's the third benefit। Fourth is upcycling has positive impact on the environment, especially when it reduces waste destined for final disposal। मतलब जो भी कचरा है वो पहले से अपना भविष्य लेके आया है कि उसे कचरा ही बनना है, उसका भविष्य आप बदल रहे हो। जैसे पेट बॉटल्स है या वन टाइम यूज बॉटल है, बेसिकली वो बनी हुई है कचरे में जाने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, उसे एक नई लाइफ दे दी, एक वैल्यू दे दिया। तो वो एक अच्छा पॉइंट है अपसाइक्लिंग में। सो एंड द लास्ट पॉइंट इज अपसाइक्लिंग कैन प्रोवाइड अ मींस टू एम्पावर यूथ। जो यूथ है, जो मेरे जैसे है या आप जैसे स्टूडेंट्स है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। सो अब जैसे कोरोना का ही पकड़ लो आप, आजकल सब कुछ मेड इन इंडिया हो रहा है। सोचो जो हमारे फर्नीचर्स है, जो रेडीमेड फर्नीचर्स चाइना से जो आ रहे हैं वो बैन कर दिए, या यूरोप से जो आ रहे हैं वो बंद हो गए, तो क्या हम फर्नीचर बनाना बंद कर देंगे? नहीं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि हम अपसाइकिल करके, या जैसे शुभदीप ने बताया बैम्बू या इंडिया के जो मटेरियल्स है वो यूज करके हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव, हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो नेगेटिव ये है कि बहुत लोग जो है वो केयर फ्री हो जाएगी, उनको एक एनकरेजमेंट मिल जाएगी। जैसे आपका एग्जांपल दूं तो शुभदीप ने अपसाइक्लिंग स्टार्ट किया,
वो अपसाइकलिंग कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हिनल, मैं बार बार नाम दे रहा हूँ तो वो गुस्से मत होना, तो अगर हिनल है तो हिनल क्या बोलेगी कि हाँ शुभदीप तो है फर्नीचर बनाने के लिए, मैं तो अपना कचरा करती रहूंगी, राइट, वो बॉदर नहीं करेंगी। तो ये एक ड्रॉबैक है कि वो दूसरों को एनकरेज करेगी ज्यादा वेस्ट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि जो मैं कचरा फैला रहा हूँ वो कोई ना कोई उसे यूटिलाइज करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना ही देगा। तो ये एक ड्रॉबैक है, अनटिल एंड अनलेस वी हैव सम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि हम रूल्स को स्ट्रिक्ट करें। जैसे बहुत सारी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में फॉरेन कंट्रीज में अगर आप खाना वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जो कचरा आप फेंक रहे हो या आप खाना वेस्ट कर रहे हो तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे रूल्स हमारी गवर्नमेंट को बनाने होंगे। यस शुक्रिया सर, आपने जो कहा ना कि गवर्नमेंट को रूल्स लाने चाहिए, बेसिकली आई फील सो कि सी इट्स लाइक कि गवर्नमेंट आल्सो मेड अ रूल कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, दुकानों में प्लास्टिक ऑफ कर दो, बट टुडे आल्सो देयर आर पीपल हु आर यूजिंग प्लास्टिक, बट देयर आर आल्सो पीपल, जैसे कि देयर इज अ गाय हु इज इन मुंबई, तो वो क्या करता है अपने फ्रेंड सर्कल्स को लेके हर संडे सैटरडे ही गो टू बीच, ही क्लीन इट एंड ही इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली. So I feel in our place, in personal level, we should work on rather than getting into someone else. कि government will put on the rules, but if we in personal level develop that thinking or in personal areas we clean out, so I feel that would also help it up. इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर मैं आपको दूंगा। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ शुभदीप, आप के घर पे आपने अपना टैप ऑन रखा है, ठीक है, और आप वेकेशन पे जा रहा हूँ 6 महीने के लिए। और जब आप 6 महीने बाद आप अपने घर पे आ रहे हो, आपने दरवाजा खोला तो आप घुटनों तक पानी आ गया, ठीक है, पानी पूरा घर पानी पानी हो गया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पोछा लेके बाल्टी में पानी खाली करोगे या टैप ऑफ करोगे? टैप ऑफ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन है उसे हम बंद करें। अगर हम रिसाइकल और अपसाइकल कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रोडक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअसली ऑन है। जो कंपनीज है, लेज है, ब्रांडियां है, वो पैकेज बनाते जा रही है, प्रोडक्ट्स बनाते जा रही है। तो हमारा ये जो इनिशिएटिव है, बीच क्लीनिंग है, अपसाइकलिंग है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम ये पूरी जिंदगी भी हमारी खत्म हो जाएगी तो हम ये चीज करते ही रहेंगे, ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंट है कि पहले फैक्ट्रीज और कंपनीज बंद हो और उसके बाद हम इस चीजों पे काम करें। सर, when you say कि factories and companies बंद हो, तो I would like to add something sir, कि अगर हम उस चीज को बाय अप नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल इन इंटीरियर्स देयर वाज अ लेक्चर जहाँ पे हमको कहा था कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो लाइक स्टोन्स एंड ऑल रादर देन यूजिंग टाइल्स वगैरह। तो व्हेन यू यूज द नेचुरल प्रोडक्ट तो उसका रेट कम हो जाएगा रादर देन दिस थिंग। So I feel that is similar goes to here also. If we don't go to buy that things and we prefer to buy some natural products से जो चीजें बने हुए हैं, जैसे for example I told about bottles, plastic हो या ये हो, might be the rates, we will find out a solution for that. But if we don't buy that thing तो उसका अपने आप मार्केट का वैल्यू लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना के कारण बहुत सारी कंपनीज, देयर आर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज मटेरियल है बट उनके पास बायर्स नहीं है। तो इफ देयर इज नो बायर्स ओनली तो दे विल नॉट मेक मोर प्रोडक्शन ऑफ दैट व्हाट आई वांट टू से कि पर्सनल लेवल में वी कैन मेक दैट थिंकिंग अप दैट वी आर नॉट गोइंग टू बाय दैट सच थिंग। जैसे कि आज चाइना है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट बाइंग द चाइना प्रोडक्ट। द सेम थिंग वी हैव टू स्टॉप बाइंग सच काइंड ऑफ आल्सो प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया में बन रहा है और हमें प्रॉब्लम दे रहा है। दैट व्हाट माय आंसर वाज। तो obviously this is the best solution, but इसे एक्शन में लाने के लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन। पीपल अवेयर होने चाहिए इसके बारे में कि हमारे पास ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल है। जैसे बैम्बू का आप बता रहे हो या कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हम वैल्यू नहीं करते, राइट। अगर वो वैल्यू हम करने लगे तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होगा। लेकिन सब चीज का जैसे ऑल्टरनेटिव लाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन आप जो डिजाइनर्स है या हम जो डिजाइनर्स है
उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं इको फ्रेंडली हो गया, मैं अमूल से दूध खरीदना बंद कर रहा हूँ, मैं तबेले में जा रहा हूँ, तो मुझे फिर भी वो जो तबेला वाला है वो प्लास्टिक की थैली में ही दूध बांध के देगा, अनलेस एंड अनटिल मैं वो अपना वेसल वहां पे लेके नहीं जाऊं। तो ये अवेयरनेस सबसे पहले क्रिएट करनी होगी लोगों में कि क्या ड्रॉबैक्स है। जैसे अभी चाइना ने अटैक किया, चाइना जो कर रहा है, वॉर कर रहा है, तब हमें पता चल रहा है कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं या ये है वो है। इसके पहले तो हम सब चाइना के ही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, सबके पास चाइना के फोन्स है, चाइना के फर्नीचर्स है, सब कुछ है। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए सबके लिए कि प्लास्टिक्स। अभी हम बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, सब प्लास्टिक के नीचे रेजिन कोड्स होते हैं, क्या आप सबको पता है? आपने ऑब्जर्व किया है? नहीं? सर आइडिया नहीं है वो जो आप बोल रहे हो उस चीज के सर बारे में। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये, मतलब आप कोई भी प्लास्टिक जब खरीदते हो तो उसके नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ होता है जिसमें नंबर्स होते हैं। Yes, sir. I've अच्छा, seen that. ओके, हाँ, ओके। Yes, राइट। सो एक से लेके 7 तक नंबर होते हैं, तो हाँ, उसमें जो 1, 3 एंड 7 है वो सबसे टॉक्सिक प्लास्टिक है, बहुत जहरीले Yes. प्लास्टिक है, वो हमें नहीं yes, खरीदने चाहिए। 2, 4 एंड 6 इज वेरी, प्लास्टिक खराब होता है, लेकिन 2, 4 एंड 6 इज लिटिल बिट गुड। तो ये एजुकेशन आप या आपको या मुझे अभी तक नहीं थी। मैं जब ऑरोविल में गया या मैंने रिसर्च किया तभी मुझे पता चली। ये सारी चीजें हमारे स्कूल्स में होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए, तब अवेयरनेस फैलेगी ना, तब प्लास्टिक लोग कम यूज करेंगे या प्लास्टिक बैन होगा। Right? So we can sir. The numbers are yeah. those numbers are basically how many times that plastic can be recycled again, right? No, wrong. It's not that. यही एक मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में कि अगर एक नंबर लिखा है तो वो एक बार रिसाइकल होगा, 2 होगा तो 2 बार रिसाइकल। ऐसा नहीं होता। No, वो actually, नंबर this का is what मतलब the है, teacher had told us in my school. राइट, बट नो दैट्स नॉट द थिंग। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक है, नंबर 1 है, दैट इज पीईटी, पॉली इथाइलिन टेरिप्थिलेट, जो सबसे गंदा प्लास्टिक होता है, जो हमारी बॉटल्स पे होता है। आप रिलेट करोगे जब मैं नंबर्स बताऊंगा। जो 1 नंबर बिस्लेरी बॉटल्स होते हैं, दैट इज नंबर 1, दैट इट इज वन टाइम यूज प्लास्टिक। जो ये नंबर है वो क्वालिटी डिफाइन करता है और वो बताता है कि ये कौन सा प्लास्टिक है। जो नंबर 2 है, दैट इज HDPE, विच इज हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। मतलब ये जो प्लास्टिक है वो ब्लीच कैंस या मिल्क कैंस, ऑयल कैंस होते हैं, उसमें यूज होता है। नंबर 3 जहाँ पे लिखा है, दैट इज PVC, पॉली वाइनल क्लोराइड, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। नंबर 4 इज LDPE। आप ये सेशन खत्म होने के बाद सब प्लास्टिक को उल्टा करके देखना, हर एक प्लास्टिक पे ये कोड्स मेंशन किए हुए हैं। अगर कोड्स नहीं है तो गवर्नमेंट उस प्लास्टिक को सेल करने की परमिशन नहीं देता। तो नंबर जो 4 है वो है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, जैसे हमारी शैम्पू बॉटल स्क्वीजेबल बॉटल्स होती है, केचप बॉटल्स होती है, दैट इज नंबर 4। नंबर 5 इज PP, पॉलीप्रोपाइलिन, विच इज यूज्ड इन फर्नीचर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है। नंबर 6 इज पॉलीस्टाइरीन, जो हमारे थर्मोकॉल्स होते हैं या लैब्स में जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हमें टेस्टिंग के लिए देते हैं, जो क्लियर प्लास्टिक जो कैमरा के लेंसेज में यूज होते हैं, दैट इज PS, पॉलीस्टाइरीन। एंड 7 इज अदर्स। 6 के बाद जो भी प्लास्टिक इन्वेंट हुए हैं, एक्रेलिक या ब्लेंड्स है, वो सब नंबर 7 में आते हैं। तो अगली बार जब आप मार्केट में जाते हो और प्लास्टिक के नीचे नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 7 है, तो आप वो प्लास्टिक परचेज नहीं करोगे। दोस प्लास्टिक आर वेरी वेरी टॉक्सिक। ठीक है? ओके, सो आई थिंक विल मूव फॉरवर्ड। बहुत
कम बचा है इसमें। इसके बाद में हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रख सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हाउ वी कैन सेव ह्यूमैनिटी। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखा है जो हेडलाइन बनाते हैं हमारी धरती माता को कैसे बचाए, हमारी मदर अर्थ को कैसे बचाए, इतने जुल्म हो रहे हैं उस पर। तो उसके लिए मेरा आंसर ये है कि ये जो अर्थ है वो बहुत ही स्ट्रांग है। एक एस्ट्रॉइड अगर टकराता है तो पूरी दुनिया एक चुटकी में खत्म हो जाती है। तो हमारी वैल्यू कुछ नहीं है, हम धरती को बचा नहीं सकते। अर्थ इज वेरी वेल साइक्लेबल। अगर हम इतना कचरा भी करेंगे तो 2-3 साइक्लोन और ऐसे कोरोना जैसे 2-3 वायरस डाल दिए तो इंसानियत का नामो निशान मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अर्थ को नहीं बचाना है, वी हैव टू सेव ह्यूमैनिटी। हमें अपने आप को बचाना है। अगर अपने आप को बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम अर्थ को बचाएंगे। अब कैसे बचाएंगे अपने आप को, तो उसका 3 बेसिक है, रिड्यूस, रीयूज एंड अपसाइकिल। अगर मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊं तो ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है, इसको फॉलो करना है आपको। सबसे पहले है अवॉइड एंड रिड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किराने की दुकान पे जाते हैं, हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट ज्यादा दिखा, स्पेशली मेरी मॉम क्या करती है, वो जाती है देखती है अरे एक पे एक फ्री है, इसमें डिस्काउंट ज्यादा है, ये स्टॉक आउट हो जाएगा, एक ही पीस बचा है, हमें उसी की जरूरत नहीं है, फिर भी हम होल्ड करते हैं। जो जरूरत का सामान नहीं है फिर भी वो खरीदते हैं। उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कंपनीज और ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने लगती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू अवॉइड एंड रिड्यूस। जब भी आप कुछ लेने जाओ तो सोचो कि आपको सच में इसकी जरूरत है क्या, या फिर यूज करने के बाद ये कहाँ जाने वाला है, इसकी वैल्यू क्या होगी। दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज रीयूज। रीयूज का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आजकल सब यूज करते हैं कि प्लास्टिक्स बैग्स ना लेके लेदर बैग को आप यूज करो, राइट। लेदर बैग को जब आप यूज करते हो तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आप बार बार उसे रीयूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो प्लास्टिक की बैग है, पॉली बैग यूज करते हो, दैट इज वन टाइम यूज प्लास्टिक, सो यू डोंट हैव टू यूज दैट। यूज रीयूजेबल मटेरियल्स, चाहे वो इंटीरियर्स हो, फैशन हो, कुछ भी हो, रीयूज वाला मटेरियल यूज करो। थर्ड इज अपसाइक्लिंग। ऑब्वियसली रिसाइकल से पहले आता है अपसाइक्लिंग। कोशिश करो कि जो रीयूज वाला मटेरियल है उसे अपसाइकल करो, उसे एक नई लाइफ दो, राइट। जैसे आप बैग की मैं बात करूँ, आपके पास अगर लेदर बैग है जो आप शॉपिंग कर रहे हो, कुछ सालों बाद यहाँ वहां से थोड़ी वो फट जाएगी, तो आप उसे कट करके की चेन्स या पेंडेंट्स या एक्सेसरीज, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। और लास्ट में आप रिसाइकल कर सकते हो। रिसाइकल जैसे मैंने बताया, जब तक हम सेग्रीगेट नहीं करते चीजें, हम रिसाइकल नहीं कर सकते। सो रिसाइकल शुड बी द लास्ट स्टेप, ठीक है। रिसाइकल के बाद आता है लैंडफिल और इंसिनरेटर्स। लैंडफिल क्या होता है कि एक हम खड्डा बनाते हैं, उसमें सब कचरा डाल देते हैं, दैट इज लैंडफिल। जो जिसमें क्या होता है कि जो भी कचरा है उसमें से हार्मफुल गैसेस और जो लिक्विड्स है वो लीक होके नीचे ग्राउंड में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम लीच बोलते हैं। और वो जो सोल्यूशन है, टॉक्सिक सोल्यूशन, वो रिवर्स में और सी में जाता है और वही पानी हम पीते हैं। तो लैंडफिल इज नॉट द ऑप्शन। इंसिनरेटर्स, जैसे मैंने बताया कि एक क्लोज्ड क्यूबिकल होता है। जब प्लास्टिक गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर आ जाता है तो क्या करते हैं, जो मटेरियल रिसाइकल नहीं हो सकते सबको जला देते हैं। तो इंसिनरेटर्स आर बेसिकली लाइक ओवन। क्या है, प्लास्टिक और जो भी कचरा है सबको जला के राख कर देते हैं, लेकिन वो राख हवा के अंदर मिक्स हो जाती है और हम इनहेल करते हैं। और जो जानवर है वो भी जब पानी में जाता है तो वो खाते हैं और मर जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि डॉल्फिन्स, वेल्स, सबके वीडियोस आते हैं कि वो धीरे धीरे सी में मर रहे हैं, समुद्र में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? कि वो माइक्रो प्लास्टिक्स खा रहे हैं, उनके पेट में से प्लास्टिक्स निकल रहे हैं और डाइऑक्सिन निकल रहा है। और लास्ट ऑप्शन होना चाहिए ओपन डंप। ओपन डंप का मतलब क्या है कि खुला मैदान है, आपने जितना भी कचरा है सब जाके वहां पे डाल दिया और एक पहाड़ बना दिया। हमारे मुंबई में क्या हो रहा है, जो चीज पहले करनी चाहिए वो नहीं हो रही, जो सबसे लास्ट है ओपन डंप। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन डंप है, जिसके वजह से बीमारी ज्यादा हो रही है।
लोगों में, लोग ज्यादा मर रहे हैं, कैंसर ज्यादा हो रहा है लोगों में, और ये कोरोना वगैरह तो बस शुरुआत है। अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है इसमें, राइट। सो दिस इज द बेसिक सोल्यूशन। और एक इसका बहुत ही एक बुरा पिक्चर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम जो कचरा क्रिएट करते हैं, जो लैंडफिल में या ओपन डंप में जाता है, उसका इफेक्ट जो वहाँ की लोकल्स है उस पर क्या होता है। जैसे कि ये इमेज है, बहुत बुरा लगता है ऐसा देख के, जो बच्चे हैं जिनकी उम्र खेलने कूदने की है वो जाके कचरा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, और उससे बीमार हो रहे हैं। सेकेंड इज वो पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे उसी कचरे में बैठ के, किस वजह से, हमारी वजह से, हमने ध्यान नहीं दिए, हमने अपना कचरा सेग्रीगेट नहीं किया, अपसाइकल नहीं किया, तो उसका सब लोड उन बेचारों पे जा रहा है, वो बीमार होते हैं, वो मर रहे हैं, हमें तो कुछ इतना नहीं हो रहा है। सो दिस इज वेरी बैड। ये देख के अगर सच में भगवान है तो जो हमने पाप किए हैं इतने सारे, मुझे नहीं लगता हमें नर्क में भी इसकी जगह मिलेगी। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट लेट। सो अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपको अपसाइकिल करना चाहिए या वेट्स सेग्रीगेट करना चाहिए, तो आपको कुछ भी अगर मेरे वर्कशॉप से इंस्पिरेशन मिले या आपने किसी और का वर्कशॉप देखा, तो प्लीज अपसाइकिल करें। अगर अपसाइकिल नहीं करना है तो रिसाइकिल करें। अगर आप इंटीरियर्स में हो, इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओवर डिजाइन ना करें। मैंने बहुत सारी साइट्स पे देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे पैनलिंग्स कर दिए, वार्निश पीयू कर दिया, लैमिनेशन कर दिया, जबरदस्ती फॉल सीलिंग बना दी, उसकी जरूरत नहीं है। फॉलो मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म भी एक बहुत बड़ी टर्म है। अगर आपको अपसाइक्लिंग या नहीं करना है कुछ, so you can follow minimalism, right? So that's it for the presentation work. If you have any questions, any suggestions, you can ask me regarding that. Yeah. Anybody for questions? गाइस, किसी को कुछ भी डाउट है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, और यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। नहीं समझ में आ रहा है, पूछ लेना। एनीबॉडी? Sir, how you got into Auroville? औरोविले, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में एक नया वर्कशॉप करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरा कैसा है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आए तो मैं वो करता हूँ, उसके बारे में सोचता नहीं हूँ। जैसे ट्रैवल एक्सपीरियंस का मैं बात करूँ तो मैंने एक दिन सुबह सुबह उठ के यूट्यूब पे शाहरुख खान का वीडियो देखा, उसमें बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे थे। मैंने शाम को टिकट कटाई और मैं केदारनाथ चला गया बिना कुछ प्लानिंग किए। वैसे ही किसी एक बंदे ने मुझे बताया कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते रहने के लिए, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है वहाँ पे, और आपको 100% फ्रीडम मिलता है, मतलब पूरी आज़ादी, आपको जो चाहे आप वो कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने, जैसे उसने बताया, दूसरे दिन मैं ऑरोविल चला गया, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ से मुझे रिवर्ट आया और मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर वहाँ पे ज्वाइन किया, और फिर बाद में एज अ साइक्लिस्ट, और एंड द जर्नी कंटिन्यूज। सर आई वांट टू आस्क वन थिंग कि जैसे कि आप अपसाइक्लिंग में आए और यू हैव स्टार्टेड मुंबई, इफ एवर लाइक मुंबई में या हमारे आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो इसमें और काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लाईवुड हम शीट को कंप्रेस करके बनाते हैं, तो वी कैन मेक कार्डबोर्ड के भी समथिंग काइंड ऑफ शीट्स इन अ बिग स्केल। तो ऐसे कोई लोग हैं जो हमें हम जाके देख सकते हैं या हम वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, विच कैन हेल्प अस? देखो, सबसे पहले कि जैसे मैंने बताया, कार्डबोर्ड्स मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, आपके यहाँ पे है कि नहीं? सबसे पहले लोकली ढूंढो आपके यहाँ पे क्या मटेरियल है क्या नहीं। आपको एक बार मटेरियल तो मिल गए, लेकिन स्किल्स, जैसे आप बता रहे हो, स्किल्स कहाँ से मिलेंगे? टूल्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, मशीन चलाना आना चाहिए, या बेसिक स्क्रू ड्राइवर पकड़ना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम यूजुअली, मैं तो अपने स्कूल में सीख के आया हूँ, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता है।
तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंधेरी में एक असाइलम है विच इज कॉल्ड एज मेकर्स असाइलम। अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट करना है अपसाइकल में, या आपको खुद का भी अगर फर्नीचर बनाना हो, तो वहाँ पे आप मेंबरशिप ले सकते हो। वहाँ पे उनके पास सब टूल्स अवेलेबल है और सब कुछ है। मतलब आप वहाँ पे जाके वर्कशॉप्स भी ले सकते हो। अगर आपके पास मटेरियल है और टूल भी है, लेकिन आपको काम करना नहीं आता, तो आप वहाँ पे जाके आपकी आइडिया उनको समझा सकते हो और वो आपको हेल्प करेंगे कुछ नया बनाने के लिए। सो दैट इज वन प्लेस यू कैन लुक आफ्टर। सर एक्चुअली में देखा जाए, सब बोलते हैं जो प्लास्टिक्स रहती हैं बैग पॉलिथीन्स की, वो मिट्टी के नीचे में काट दिया जाए तो बोलते हैं 5-10 साल तक भी वो वैसे सेम सिचुएशन में ही रहता है, कुछ खराब हुआ नहीं रहता, सेम रहता है। ये राइट है क्या? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये किसने बताया आपको, क्योंकि जो प्लास्टिक की बैग है वो 4-5 साल नहीं बल्कि 450 से 500 साल तक जमीन में रहती है, राइट। तो ये 4-5 साल वाली बात नहीं है। अगर आपने एक टूथब्रश खरीदा, आपने उसे यूज किया और फेंक दिया, तो आप तो चले गए, आपके बच्चों के बच्चे भी चले जाएंगे, फिर भी वो टूथब्रश वहीं का वहीं रहेगा। तो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए प्लास्टिक इज वेरी बैड मटेरियल। सर थैंक्स कैन आई सर। आस्क यू वन थिंग, दैट इज कि हम अपसाइकलिंग और रिसाइकलिंग को जब मिक्स कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम इंटीरियर्स में अपसाइकिल करते करते उस चीज को हम एनवायरनमेंट के खिलाफ ही बना देते हैं, दैट वी थिंक इट्स अपसाइकल। बेसिकली बॉटल्स हो गए, हम लोग प्लास्टिक को अपसाइकलिंग सोच के हम लोग उसको बनाते हैं। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट डिफरेंशिएट कि ओके दिस इज गुड फॉर अस एंड दिस इज अपसाइकल्ड, तो ये अपसाइकलिंग के नाम पे वो गलत नहीं हो रहा है। जैसे कि नाउ आई अंडरस्टूड कि इवन प्लास्टिक इज नॉट अपसाइकल्ड, बेसिकली हम घर पे लाके उसका लैंटर्न बना लेते हैं, ये इन शॉर्ट दैट इज आल्सो गोइंग इट्स वेस्ट ओनली, क्योंकि वो भी जाके एनवायरनमेंट को कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो हाउ कैन वी कीप दैट नॉलेज कि ओके इवन वी यूज ग्लू आल्सो, वी यूज सो मच ऑफ ग्लूज, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमें अपसाइकलिंग के वक्त ध्यान रखना है कि नॉट टू यूज इट? सो इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जिसे आप यूज कर सकते हो। जैसे आप अगर ग्लू की बात करें, तो हम सब जगह राइस ग्लू यूज नहीं कर सकते, राइट। सिर्फ पेपर्स के लिए यूज कर सकते। जैसे अगर मुझे प्लाईवुड पे लैमिनेट चिपकाना है, तो मुझे फेविकॉल ही यूज करना होगा, राइट। तो हम इसमें क्या आता है, मिनिमलिज्म। जैसे मैंने बताया कि अपसाइकल और रिसाइकल अगर मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं ये देखूं कि कम से कम मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो रहा है, दैट इज वन थिंग। अदर थिंग कि रिसाइकल और अपसाइकलिंग को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि अगर आप अपसाइकलिंग कर रहे हो तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट। जैसे अगर आपने हला बोल दिया प्लास्टिक, ये लेस की कंपनी में कि प्लास्टिक बंद करो, तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट। बाकी लोग तो आपको नो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग बहुत टाइम घर पे भी अगर हम चीजों को रिसाइकिल करने जाते हैं, अपसाइकिल करने जाते हैं, तो वी यूज लॉट ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, दैट वी शुड नॉट यूज, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पे अपसाइकिल नहीं हो रहा है, वो हम उसी को मतलब सिर्फ न्यू लुक दे रहे हैं, इट्स नॉट अपसाइकिल बेसिकली। दैट प्लास्टिक इज, वो प्लास्टिक ही रहेगा, उसका मटेरियल वही रहने वाला है। तो ऐसे कौन से मटेरियल्स है विच वी शुड नॉट यूज, और जो हमें, और अपसाइकलिंग में ऐसे कौन से मटेरियल्स है जो हमें यूज करना चाहिए बेसिकली, और उसके अल्टरनेटिव्स क्या है? अपसाइकलिंग में आपको सारे मटेरियल्स यूज करना है। जैसे आप प्लास्टिक भी बोल रहे हो, आप प्लास्टिक को यूज करके उसकी अगर लाइफ बढ़ा रहे हो, देन दैट इज अपसाइकलिंग। लेकिन जब Okay. हम स्कूल में जो करते हैं, हम स्कूल में क्या करते हैं कि प्लास्टिक की बॉटल लेते हैं, उस पे ऑयल पेंट करके उसके ऊपर टेडी बेयर वगैरह बनाते हैं Right. और अल्टीमेटली वो फेंक देते। दैट इज बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वो अपसाइकलिंग नहीं है। लेकिन अगर वो प्लास्टिक की बॉटल को आप कुछ अच्छा बना के 1 साल नहीं बल्कि 10 साल चले, ऐसा कुछ कर रहे हो, सो दैट इज अपसाइकलिंग। Okay. एंड सर विच आर द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स आई कैन यूज? जैसे कि अभी आपने एक बोला कि ग्लू के जगह वी कैन यूज समवेयर राइस का ग्लू,
तो ऐसे और कौन से ऐसे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स है जो हमको हेल्प करेंगे चीजों को डेवलप करने के लिए? मैं अपने घर की बात करता हूँ, जैसे अभी मैट्रेस है, अभी मैं मैट्रेस को क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैट्रेस फोम से बनता है, राइट? फोम इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, इट्स अ काइंड ऑफ रेजिन। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जो अमूल की दूध की थैली आती है, प्लास्टिक बैग्स आती है, मैं उसे कट करके क्रोशे करके उसकी मैट बना रहा हूँ, और मैट को ओवरले करके उसका कुशन बना रहा हूँ, राइट? अब जो अमूल का लेयर बनेगा या उसकी जो गद्दी बनेगी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, राइट? तो उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं उसके ऊपर कॉटन यूज करूंगा। अगर मैं उसके ऊपर कॉटन से उसे कवर कर देता हूँ तो एक बहुत अच्छी सिटिंग बन सकती है। सो मैं फोम को अवॉइड कर रहा हूँ। और जो मेरे यहाँ पे जैसे अमूल की बैग्स है, मुझे बताओ ये कहाँ जाती है? कौन रिसाइकल करता है? कोई नहीं करता। सब लोग अपने घर पे कचरा भर के एक डस्टबिन में डाल के फेंक देते हैं। और मुश्किल से, मैं बता रहा हूँ, हमारे आपके सोसाइटी या मेरे सोसाइटी में आउट ऑफ 10 8 people would be using this Amul bags, which is going nowhere other than landfill. So we can do something like this. फिर नीम, अगर आप मैं बताता हूँ, जैसे टूथब्रश है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? चीजें अपसाइकिल खुद के अंदर लाना इतना इजी नहीं है। पहले के जमाने में ये सब प्लास्टिक के टूथब्रश नहीं थे। आजकल क्या हो गया है कि सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया है। जब भी आपका धंधा नहीं चले, आपको काम आएगा, ये बात ध्यान से सुनना, कि आपका धंधा नहीं चले, आगे सस्टेनेबिलिटी लगा लो। जैसे सस्टेनेबल इंटीरियर्स, सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल लाइफ। सस्टेनेबल सुन के लोगों को क्या लगता है, अरे इको फ्रेंडली है, ये है, वो है। लेकिन अगर आप बैम्बू टूथब्रश पे प्लास्टिक के ब्रिस्टल्स यूज कर रहे हो तो वो कैसे सस्टेनेबल हुआ? दैट इज नॉट सस्टेनेबिलिटी। लेकिन अगर आप नीम का जो ट्विग है, जो पुराने जमाने में दातून यूज करते थे, वो आप यूज करो। आपने चबाया, ब्रश किया और फेंक दिया, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन सबको टेस्ट चाहिए, तो अभी टेस्ट कैसे लाए? नीम तो कड़वा लगता है, तो टेस्ट के लाने के लिए भी सोल्यूशन है। जैसे कोलगेट, हमारे दिमाग में एक ही बचपन से कोलगेट के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं। हम टूथपेस्ट मार्केट से ही बाय करते हैं। लेकिन मैं जब ऑरोविल गया तो मैंने देखा कि टूथपेस्ट हम अपने घर पे भी बना सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनती है और हेल्दी भी है। अब कोलगेट में क्या क्या केमिकल्स है हमको नहीं पता, लेकिन घर पे जो हमने वो टूथपेस्ट बनाई है वो तो हमें पता है, और हेल्दी भी है। तो टूथपेस्ट हो गया या क्लीनर्स हो गए, हम सब कुछ बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, दैट्स इट। सर, अपसाइक्लिंग में व्हेन यू से अबाउट अपॉर्चुनिटीज, तो एज इंटीरियर्स इज अ वेरी बिग फील्ड। अगर आपने उसमें ज्यादा, हर चीजों में हम वेस्ट ढूंढ सकते हैं टू ग्रो इट अप। तो फॉर एग्जांपल इवन आई सेड कि जैसे व्हेन यू सेड अबाउट कार्डबोर्ड का द शीट, आई गॉट अ आइडिया ऑफ व्हाई कांट वी ओपन अ फैक्ट्री विच क्रिएट अ, जो प्लाईवुड के शीट है उसके जगह वो कार्डबोर्ड के शीट से प्लाईवुड जैसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल क्रिएट कर सके, विच इज यूजफुल टू एवरीथिंग। हाउ you are giving some input into such things, like आप educate कैसे कर रहे हो सबको कि in interiors these opportunities we get? Like if I do interiors, most of the people does like हमको firm open करना and we do want to do, but in large scale also things can be done. So how you are giving your things into this? देखो, इसका मैं बताता हूँ आपको। अगर बेसिकली किसी के भी दिमाग में सबसे पहली चीज यही आता है कि कार्डबोर्ड है, मैं वेस्ट से बना रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मुझे कम पैसे में मिल रहा है, प्लाईवुड का अच्छा ऑल्टरनेटिव है कुछ केसेस में, तो मैं उसकी फैक्ट्री खोल दूँ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो गलती वो लोग कर रहे हैं वही गलती हम कर रहे हैं। मास प्रोडक्शन जिसकी जरूरत नहीं है, हमें वो चीज नहीं करनी है। अगर वो ट्रैश में अवेलेबल है तो ही हम यूज करेंगे। रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी, कैसे आप इंटीरियर डिजाइनर से या कैसे ट्रैश से पैसा कमा सकते हैं? मार्केटिंग से। जैसे मैंने अपने, अगर अच्छे से वो बल्ब वाला इमेज देखा होगा, जो फर्स्ट मेरा इमेज है, वो दिखने में इतना ऑथेंटिक और रिच लगता है। मैंने क्या यूज किया? जो टूटा हुआ प्रोडक्ट है वो है ना, मैंने ग्लू यूज किया ना कुछ, और सिंपल हैंड टूल्स यूज किए। मुझे हार्डली 200 का खर्चा है, लेकिन अगर मैं वही चीज मॉल में रखूं
तो वो 200 का मुझे 2000 मिल सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। Right, sir. दैट इज मार्केटिंग टेक्निक विच यू शुड हैव। सो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग क्रिएट कर सकते हो कि ट्रैश से जब पैसे नहीं है उससे बिजनेस कैसे करना है, ये भी एक टेक्निक है दैट यू कैन डू। पर आप ये नहीं कर सकते कि ये बहुत अच्छा है तो मैं मास प्रोडक्शन में वो स्टार्ट कर दूं। तो Right. लोग क्या करेंगे, प्लाईवुड छोड़ देंगे और कार्डबोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, तो कार्डबोर्ड तो इतना सारा हो गया waste कि अभी और कार्डबोर्ड हाँ का क्या करें। राइट। waste ज़्यादा हो जाएगा. Right. And so, can you share वो rice glue का recipe? Sorry, like how are we supposed to make that? या डेफिनेटली आई वुड शेयर विद निकिता मैम, जो भी आपको चाहिए, राइस ग्लू, फिर मटेरियल लिस्ट, फिर कौन से पेजेस आपको फॉलो करना है, अगर आपको अपसाइक्लिंग करना है तो मैं सब कुछ चीज़ें वो निकिता मैम से शेयर कर दूंगा। और जैसे मैंने लास्ट पेज पे अपने डिटेल्स भी दिया है इंस्टाग्राम पे, या आप निकिता मैम से भी कांटेक्ट लेके मुझसे बात कर सकते हो। जैसे आपके माइंड में कुछ आया कि आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है या फर्नीचर बनाना है, आपके पास ये मटेरियल है, सो यू कैन एनी टाइम पिंग मी और डिस्टर्ब मी। आई एम अवेलेबल 24/7 एनी टाइम फॉर यू। So can you take a workshop on that? We can upcycle some few things on live right now, like afterwards, या डेफिनेटली so that we आफ्टर can कोरोना। understand कि उसका जो joints हो रहे वो उतना strong है भी कि नहीं है, because there is a right now confusion in my brain कि आपने जो kitchen का cabinet बना है, is that so strong? So till that when I don't see it or I can't understand it, तो वो मुझे नहीं समझेगा. That's the reason I'm saying. Definitely, Shubdeep. I Definitely, feel definitely we can. even Harshal sir will agree on this. We'll definitely have more workshops with him. I know all of us and even the people who are right now like on this meeting, everybody is more inspired and more motivated by this Yes. upcycling workshop. And I know lot of minds must have opened up. So I guess we will love to have you, sir, again in this workshop. Same here, same here. So any more questions ahead? So one more thing, if you come next time, can you please show your portfolio or something, the whole work, how you applied things, so that we And can the questions, understand, Yeah, so we can definitely. Question. understand that thing, ki how you applied for that, yeah. Yeah, Even I want to definitely. see. your work, your basic things, how you start and how you evolve the process, everything. Definitely, definitely, I would share with you. Thank you, It sir. will be my honor. Also, Sir will definitely also, share, sir, but if you are not supposed to is copy. You are supposed to just get inspired by it. It's upcycling, so it's open source and free design. So you can copy. No No copy. restriction on So copyright. you're giving them No, an sir, sir, we is just option, there they'll want do any to the get an same formal idea. course in this? You're giving them an option, they'll do the same thing. Guys, you are designers. You have to think more. Yeah. Sir, is there any formal course for upcycling or something? Not yet, but in coming years, I would be opening this course. So you can definitely join me. Until then, what you can do is I would share links. You can volunteer and you can learn online. There are so many websites who gives this workshops which you can implement in your own house. You can make products at your own home. You don't need to do any professional course for that. Even I can So, give you online workshops for that so for one free. more question. This is not on to upcycling. This is something Yeah. that आपने एक person से inspiration लिया and you contact that person and you try to work with that person. So how you did that? Like हम जब देखते हैं online and we see कि yeah we want to work with this person and it's very difficult to get connect with that person. How you did that? देखो, सबसे पहले जो मैंने ऑरोविल की जर्नी में बताई कि मुझे अपसाइक्लिंग के बारे में नहीं पता था। जब मैं ऑरोविल गया, आई अप्लाइड एज अ ग्राफिक डिजाइनर। मैंने 6 महीने वहाँ पे एक यूनिट है जो छोटे बच्चों के लिए कलाइडोस्कोपिक गेम्स बनाती है मेमोरी शार्प करने के लिए, उनके साथ काम किया। और अचानक से मैंने एक फर्नीचर देखा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि देयर इज वन गाय हु इज कॉल्ड एज मार्क एंड ही मेक्स अमेजिंग फर्नीचर्स फ्रॉम थ्रैश। मैं 2 मिनट के लिए स्टंड रह गया कि यही तो मेरी चीज है, मैं बचपन से ये करते आ रहा हूँ। तो डेस्टिनी ने मुझे कनेक्ट कर दिया इनके साथ, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ मेरी
जो दिल से ख्वाहिश थी वो ऑटोमेटिकली पूरी होगी। Thank you, sir. Thank you. Welcome. Okay, anybody else? Any more questions? यार सब खत्म हो गया, बस हो गए आज के सवाल। Okay, I guess majority of them are, I feel आज के सेशन से बहुत सारे doubts, ideas कुछ खुले रहेंगे, समझ में आए रहेंगे, and there's lot more to explore. So, and we as designers, due to today's workshop, I guess सारे जन ये समझ के होंगे, we as designers, we are the main part of this society and who will contribute in the society and in the better living basically. So I feel बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया है, and being designers, just open up your minds and start working on that. Clear है? Are you guys with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And thank you so much, sir, for sharing so much, so such a great knowledge and inspiring students. I hope हम वापस मिलेंगे and with the same energy. Today it was like कि सब questions खत्म नहीं हो रहे थे, and I feel ये आगे भी questions जितने आएंगे उतने अच्छे हैं. It will clear your doubts. Yes, ma'am. Okay, guys. We'll soon meet you again in the next session, and with the same energy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And thank you, Yes, sir. ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, guys. See you then. Bye-bye. Bye. 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 Bye, guys. Bye. 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 Bye.